Hi dear students, how are you? I hope you are good. Dear students, in previous videos we discuss preposition and types of preposition and also special types of preposition. And after preposition, dear students, now I want to repeat, want to revision class of professional English. That is first point is English language. So dear students, you know that what is the importance of English in our career, in our professional jobs, in our education. So dear students, you know that what is the importance of English language. So now we study here English language and types of English and also professional technical English, and there are so many types of this. And so now we start, dear students. English language means, what is the meaning of English language? Dear students, you know what is English, and your total studies depend on English, but here main point is English language. So our topic is professional English, but then our topic is English language. So we see here English has become one of the most popular languages in the world. So students, जो इंग्लिश है, मतलब जो इंग्लिश है आज के समय में सारे भाषाओं में सबसे पॉपुलर यानी सबसे फेमस वर्ड लैंग्वेज हो गया है पूरे संसार की। अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन होल वर्ल्ड. सो एंड नाउ इट सक्सेसफुली कनेक्ट्स स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड अदर्स पीपल learning and working in different parts of the world through communication process. So students, you can see here इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है और ये बहुत ही सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है दो स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, प्रोफेशनल्स के बीच में और दूसरे पीपल जो लोग सीखते हैं, कोई काम करते हैं या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं. स्टूडेंट्स मीन्स अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं तो यू कैन सर्वाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज दिस इज द ग्लोबल लैंग्वेज. यू नो दैट इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज also. You know that English is known as a global language. So and now once again we see types of English. So students, अब हमने पढ़ा इंग्लिश लैंग्वेज. अब इंग्लिश लैंग्वेज के बाद हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं जिनका वर्किंग और लर्निंग ही इंग्लिश में होता है. और ये पूरा प्रोसेस जो होता है सीखने का विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, दैट इज नोन एज learning process, and this is totally depend on communication, and this is totally depend on language. So you students, language is very important. Language is very very important in our learning process. So types of English, first is ESP. So you can see here ESP, and first is ESP. Second is EAP. This is the short form. And now ESP means English for specific purpose. This is first is ESP means English for specific purpose. means students, English एक ऐसा लैंग्वेज हो जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए होता है. स्पेसिफिक पर्पस से स्पेशल लैंग्वेज इंग्लिश को ही यूज करना है. ठीक है, तो आप स्पेसिफिक पर्पस में देख सकते हैं इसको. और सेकंड क्या है, सेकेंड इज EAP. EAP मीन्स क्या, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस. इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस मतलब जितने भी एकेडमिक में चीज़ों को किया जाता है, यानी लैंग्वेज जो इसका हेल्प लिया जाता है वो इसमें लिया जाता है EAP में. सो एंड EFL, इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, दोनों हम कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये हमने अपने स्पीच में बताया था कि इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. सो यू कैन सी, you can get it here. EFL means English as a foreign language, and second is English as a second language. So and fourth is ESL. Fourth is ESL means ESL means कह सकते हैं आप यहाँ
English as a second language. This is very important. ESL. And now fifth is ESOL, and English to speakers for of other languages. So students want to repeat this. English. What is English language? English language. English has become one of the most word popular languages in the world. It successfully connects students, professionals, and others people learning and working in different parts of the world through communication process. English has various types. First is various types of English. So first is ESP, second is EAP, third is EFL, fourth is ESL, ESOL. And now our next point is introduction of professional English. Students, introduction of professional English. So students, in today's global society, business is increasingly being conducted across borders, with English often being used an international language of communication. The ability of use English in the workplace has a numbers of benefits, including that is helping your company to succeed, building trust with colleagues and clients, building and impressing international relationships, enhancing your skill set, and commanding higher pay, enhancing relationship through cultural understanding. So students, now we discuss point to point, that is means प्रोफेशनल इंग्लिश. स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा इंग्लिश लैंग्वेज एंड उसके बाद हम देखेंगे अब प्रोफेशनल इंग्लिश क्या होता है. स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट ही प्रोफेशनल इंग्लिश है, तो यू हैव टू नो व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस प्रोफेशनल इंग्लिश. सो प्रोफेशनल इंग्लिश, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि जो प्रोफेशनल इंग्लिश है, अगर आज के टाइम में हम देखें तो अपने जो ग्लोबल सोसाइटी है बिजनेस में, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए, उसको और अच्छे से प्रोग्रेस करने के लिए, उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए हम अपने प्रोफेशनल इंग्लिश का यूज़ करते हैं. और जो एबिलिटी हम इंग्लिश के थ्रू उसमें लाते हैं वर्क प्लेस पर, उससे हम नंबर्स ऑफ बेनिफिट्स को पा लेते हैं. मतलब उससे अपनी प्रोफेशनल इंग्लिश को यूज करके हम अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं. और ये डी स्टूडेंट्स, ये कैसे काम करता है, मतलब ये कैसे आप इन्हेंस कर सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर है हेल्पिंग योर कंपनी टू सक्सीड. फर्स्ट इज, अगर आप प्रोफेशनल इंग्लिश को फॉलो करते हैं, प्रोफेशनल इंग्लिश के द्वारा मतलब प्रोफेशनल इंग्लिश के थ्रू आप अपने चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, तो आप देखेंगे हेल्पिंग योर कंपनी टू सक्सीड. मतलब ये जो लैंग्वेज होता है, ये आपको क्या करता है, आपके कंपनी को सक्सीड पॉइंट पर पहुंचाने के लिए कोशिश करता है. दूसरा क्या है, बिल्डिंग ट्रस्ट विद कॉलीग्स एंड क्लाइंट्स. अगर आप प्रोफेशनल इंग्लिश के थ्रू यूज़ करते हैं, तो आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा विश्वास क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, एक चेन बना सकते हैं, जिससे आपकी इमेज अच्छी हो जाती है. एंड थर्ड इज बिल्डिंग एंड इम्प्रेशनिंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप. मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोफेशनल इंग्लिश के थ्रू कोई भी डील करते हैं या कोई भी चीज़ों को करते हैं, तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं, इससे आप क्या करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी बना सकते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज इनहेंसिंग योर स्किल सेट एंड कमांडिंग हायर पे. स्टूडेंट्स, आप अपने स्किल्स को विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल इंग्लिश यू कैन इम्प्रूव योर इनहेंसिंग स्किल्स एंड यू कैन गेट अ गुड जॉब एंड अ गुड पे जॉब. मीन्स क्या स्टूडेंट्स, अगर आप अपने स्किल्स में प्रोफेशनल इंग्लिश की एक्टिविटीज़ को डाल लेते हैं या उसकी एक्टिविटी को करते हैं, तो आपका जो हायर कमांडिंग पे होता है, मीन्स आप अच्छे से अच्छी सैलरी, अच्छे से अच्छे जॉब को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं. तो उसमें भी आपको क्या करता है, ये बेनिफिट होता है. सो स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इज इनहेंसिंग रिलेशनशिप थ्रू कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोफेशनल इंग्लिश के थ्रू चीज़ों को करते हैं, तो आप जो भी रिलेशनशिप होता है, कल्चरल रिलेशनशिप होता है, यानी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होता है, यू कैन अंडरस्टैंड. बिकॉज दी स्टूडेंट्स, अगर इफ यू डोंट नो a good English, so you can't know understand the culture of foreigner, the culture of other countries. So with the help of English you can understand other countries culture, like that, how people live there, and how
they treat to each other. That there's so many examples you can see with the help of PE, means professional English. So I hope you get it. And now next point is professionals and technical English. So now first of all we see English language and types of English, and next point is introduction to professional English. Next, how can I improve, what are the benefits of PE, means what are the benefits of professional English. We see in this slide, it is helping your company to succeed, building trust with colleagues and clients, building and imprisoning international relationships, enhancing your skill set and commanding higher pay, enhancing relationship through cultural understanding. So and next is professional technical English. That is means प्रोफेशनल टेक्निकल इंग्लिश मीन्स देखिए, टेक्निकल मीन्स होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड आर्ट ऑफ क्राफ्ट एंड इट्स टेक्निक. सो स्टूडेंट्स, you are study in technical field, so you know what is the meaning of technical. Technical means, students, what is your idea, what is your creation in the form of a machine, in the form of a software, in the form of a building. So you can give many examples. If you understand technical, so what is the meaning of technical? टेक का मतलब होता है सीख लेना, नहीं तकनीकी को सीखना मतलब टेक्निकल होता है. जैसे टेक्निकल में पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, एक पर्टिकुलर टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू जो भी हम आर्ट, जो भी क्राफ्ट, जो भी टेक्निक होता है, अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, टेक्निकल होता है. और टेक्निकल पब्लिक प्रोफेशनल इंग्लिश इज एन इंग्लिश लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एमंग टेक्निकल इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल्स. तो स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा इंग्लिश, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोफेशनल इंग्लिश, उसके बाद हम पढ़ रहे टेक्निकल इंग्लिश. तो हमको टेक्निकल इंग्लिश पढ़ने का इसलिए मोटिव है कि हम वी आर रिलेटेड टू टेक्निकल फील्ड, सो वी हैव टू फोकस ऑन टेक्निकल इंग्लिश. So what is the benefits of technical English and why we use technical English? Because we are totally depend on technical field, so we have to use technical English in our fields. So you can see technical professional English is an English language used for communication among technical industrial professionals. Means the students, जो professional English होता है एक ऐसा लैंग्वेज होता है, यानी कि ऐसी भाषा होती है जिसको हम अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं. जैसे बहुत सारे टेक्निकल और इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके बीच में हम करते हैं. फिर है इट इज़ द इंग्लिश यूज्ड बाय पीपल फॉर कम्युनिकेशन हु आर टेकिंग अप टेक्निकल प्रोफेशंस. मीन्स स्टूडेंट, इट इज़ द इंग्लिश करा एक ऐसी इंग्लिश है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, जो हमको क्या करें, सीख सके, जिससे हम सीख सकें या जिसको हम सिखा सकें इन टेक्निकल प्रोफेशनल्स को. टेक्निकल प्रोफेशनल्स को सिखाने के लिए भी हम टेक्निकल इंग्लिश का यूज़ करते हैं, बिकॉज they are unfamiliar to technical language. So with the help of technical English we will try to get them how we can improve our technical English. So dear students, this is the example, and now it is used for technical communication in a particular types of workplace or context. Dear student, जो टेक्निकल इंग्लिश होता है उसको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर या पर्टिकुलर वर्क प्लेस पर हम क्या करते हैं, देखते हैं या यूज करते हैं. If an industrial wants to start up high own business, he approaches to bank for loan, he will use technical English for drafting your proposals. So students, अगर मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जो एग्जांपल्स होते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्रीज को स्टैंड करना चाहते हैं, तो अगर जब आप किसी इंडस्ट्रीज को स्टैंड करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. तो बहुत सारे पैसों का आप एक प्रपोजल बनाएंगे, उस प्रपोजल को आप बैंक में लगाएंगे, तो बैंक में टेक्निकल इंग्लिश ही काम करता है. कि आपको जैसे मान लीजिए ड्राफ्टिंग हो गया, तो नहीं, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग. तो ड्राफ्टिंग का मतलब क्या हो गया, ड्राफ्टिंग टेक्निकल इंग्लिश हो गया. ठीक है, तो आप जो प्रपोजल बनाते हैं, जो डिमांड करते हैं, जो ड्राफ्ट बनाते हैं, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं वो टेक्निकली यूज किए जाते हैं. और कहाँ पर यूज किए जाते हैं, अपने टेक्निकल लैंग्वेज में.
If your company has manufactured, launched new product, you would want to communicate or greet your presentation regarding the details of it too. मीन्स अगर स्टूडेंट्स, अगर आपकी कंपनी कोई मैन्युफैक्चर करती है, कोई नया लॉन्च प्रोडक्ट करती है, तो आपको भी कम्युनिकेट किया करना पड़ता है कि उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, और उसका सप्लाई कैसे करना है, उसको क्या करना है। तो इन सारे चीज़ों को आप टेक्निकल इंग्लिश के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं या भेज सकते हैं। सो आई होप यू गेट इट एंड स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय।